डॉक्टर हूँ और अभी जो वहाँ पे डॉक्टर्स के जो उन लोगों के अंदर डर है वो मैं सोच के मुझे तो मालूम नहीं होता कि मैं अगर उनके सिचुएशन में थी तो क्या कर सकती थी। जो बच्चों को एनेस्थीसिया दिए बगैर स्टिचिंग करते हैं, मैंने मेरे लाइफ में एक बार ऐसा किया है कि एनेस्थीसिया बगैर एक स्टिचिंग किया है, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लीटली ड्रंक और अनकॉन्शियस थी और फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि अगर वो पेशेंट को कॉन्शियस हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे तो छोटे बच्चे हैं जिनको एम्पुटेशन कर रहे हैं। एम्पुटेशन का मतलब है हाथ काटना, पाँव काटना। आज मैंने पढ़ा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक ही दिन में मैंने इतना हाथ पाँव काटा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में बैठे हैं, मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो, अपने स्टोरीज आप लिखो या अगर कोई और लिखे हैं तो उसको शेयर करो, लाइक करो। How do you see the situation and what solution do you want? I want peace for everybody. I mean, I'm an American myself. I don't agree with funding anything that's going on anywhere in the world that causes the loss of a person's life, period. And the situation right now in Palestine is not just about now, it's about the past since the 40s, and it needs to stop. And I'm happy to see that finally in Bangalore and in India we're able to have a peaceful protest, because it's a long time coming. The rest of the world is speaking up, and I'm glad to see that in Bangalore and in India as well. Your name, ma'am? Chelsea. Thank you. Thank you. Palestine, that innocent children and women are being attacked and being killed. There is a genocide happening, and Israel is not stopping its aggression, and the world has failed to stop It's the saddest thing actually that we as we with the technology, we with every power, we still cannot do anything about it. Like we are still witnessing every horror. In a minute, like a child is dying by the Israel aggression and all. The thing is that this saddest fact is even we know what is right and what is wrong. If we speak about it, we will be censored. If we speak about it, we will be not be able to do anything. So the thing is that the Israelis are doing with the Palestinians, it's not since October 7th. It started 75 years back. The occupation started since 75 years back. So the mere resistance on October 7th, it's not, it was a resistance. The media is, portraying it as an attack or something like that. It is responsibility, or it is the right of them to resist back, right? So who are we to say to them that you are a terrorist, you are this and that? It's not right. Supporting Palestine and condemning the action by Israelis. How do you see the situation, and what is it that you want?
Well, I would like to thank everyone who came here today. First, as a human being, on a human level, this is a very, very difficult time that we're watching a genocide happening. And as a Palestinian, I would also like to thank everyone who came here today. We, as Palestinians, we've been suppressed for over 75 years, and we've been silenced for over 75 years. So seeing people standing here calling for a free Palestine, they are speaking for Palestinians. So would love to thank them. Would love to thank everyone who came here. They are being the sound of Palestinians, which been suppressed and silenced for over 75 years. What do you think the future holds for Palestinians? Nobody knows. We hope for ceasefire, first of all, and negotiations for better situation for everyone. Your name, sir? Amir. मैं सोचती हूँ कि हमारे इस्लाम क्या सिखाते हैं, अगर कहीं पे जुल्म हो जाए तो हमको उसके ऊपर बात करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि कुछ मत करो, दुआ करो। हाँ, दुआ करेंगे, लेकिन हमारे इस्लाम ने ही सिखाया है कि पहले आप अगर कुछ भी जुल्म देखें तो उसको अपना हाथ यूज करो और बंद करो। हाथ नहीं उठा सकते तो मुंह से बात करके बंद करो, वो भी नहीं कर सकते फिर दुआ करो। अभी हम कुछ कर सकते हैं। आज का जनरेशन, अभी मैं तो जब 8 क्लास में हूँ तब से मैं फलस्तीन के बारे में सीख रही हूँ, मालूम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिसको मालूम नहीं था। आज का जनरेशन जिसको हम लोग मजाक करते हैं कि टिकटॉक जनरेशन है, इंस्टाग्राम जनरेशन है, ये बच्चे हमेशा इंस्टाग्राम में रहते हैं। यही बच्चे हैं जो अभी फलस्तीन के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बात बता रहे हैं कि फलस्तीन में अभी क्या हो रहा है। तो आप घर में बैठे हुए कुछ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियोस अभी तो सब लोग हैं, उसमें कुकरी शोज देखते हैं, वीडियोस लाइक करते हैं, गार्डन के बारे में लाइक करते हैं, बेबीज के बारे में लाइक करते हैं। एक पोस्ट फलस्तीन के बारे में भी लाइक करो, क्या होता है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, डरना नहीं है। वो एक पोस्ट लाइक करने में जो सोशल मीडिया में ट्रेंड ऊपर जाएगा तभी पूरे दुनिया में ये बात आएगी। अभी उतना जहाँ पे इतना हम लोग देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर 500-600 बच्चे मर रहे हैं। हर घर में बच्चा है। देखिए अपने अपने बच्चों को, आपको कैसा लगेगा? कल बेंगलुरु में एक डर हुआ कि बॉम्ब है, तो इतना डर गए पेरेंट्स, सब लोग उधर इधर भाग रहे हैं। मेरे भी फैमिली लोग डर गए थे। तो आप सोचें कि हर दिन रात को बैठ के पेरेंट्स डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग कब, हमारा बच्चा का कब एंड होगा। नाम लिख रहे हैं अपने बच्चों के बॉडीज में। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अभी जो वहाँ पे डॉक्टर्स के जो उन लोगों के अंदर डर है, वो मैं सोच के मुझे तो मालूम नहीं होता कि मैं अगर उनके सिचुएशन में थी तो क्या कर सकती थी। जो बच्चों को एनेस्थीसिया दिए बगैर स्टिचिंग करते हैं, मैंने मेरे लाइफ में एक बार ऐसा किया है कि एनेस्थीसिया बगैर एक स्टिचिंग किया है, क्योंकि वो पेशेंट कंप्लीटली ड्रंक और अनकॉन्शियस थी और फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे कि अगर वो पेशेंट को कॉन्शियस हुआ तो क्या होगा। यहाँ पे तो छोटे बच्चे हैं जिनको एम्पुटेशन कर रहे हैं। एम्पुटेशन का मतलब है हाथ काटना, पाँव काटना। आज मैंने पढ़ा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि एक ही दिन में मैंने इतना हाथ पाँव काटा है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, घर में बैठे हैं, मोबाइल है, मोबाइल का यूज करो, अपने स्टोरीज आप लिखो या अगर कोई और लिखे हैं तो उसको शेयर करो, लाइक करो। ये अभी 75 इयर्स हुआ है, अभी मत आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए। अभी हमारे साथ अभी पुलिस प्रोटेक्शन में है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट को नहीं आ सकते हैं, बहुत से लोग नहीं आ सकते, तो घर में बैठ के कुछ तो करिए ना, वही मेरी रिक्वेस्ट है। आपका नाम? डॉक्टर निहाद। शुक्रिया।